welcome to Antara Squad. So in this video, I'm going to exclusively guide you for MA Sociology from Delhi University, that is Delhi School of Economics. So many of you have been asking me for quite a long time to bring up a video on what to study, what not to, कहाँ से पढ़े, क्या है syllabus, क्या नहीं. So आज इस video में I'll try to guide you all throughout, but in case इसके बाद भी आप लोगों के पास कोई doubt है, you can always comment and ask me and I'll try to clarify your doubts. So सबसे पहली बात तो I want to tell you that मैं आपको step by step लेके जाऊंगी. पहले हम basics discuss करेंगे, उसके बाद हम finally जाके ये देखेंगे कि form कैसे fill up करना है, क्या नहीं. So the first thing I want to tell by starting is that there is no syllabus provided for the MA question paper. ये students ने काफ़ी ज़्यादा मुझे पूछा है कि मैम syllabus क्या है, क्या पढ़े, because we all know that some universities like Jamia, JNU, they provide at least a short syllabus कि आपको ये topics पढ़ने हैं and यहाँ से हमारे questions आएंगे. But for the case of Delhi University, they do not provide a syllabus. The reason I will tell you why, and I will also discuss with you the question patterns, आपको क्या पढ़ना है, what are the things that you people have to strengthen within you to appear for this exam, and finally I'll tell you how to do the form fill up, criteria क्या है, eligibility क्या है, etc. So again welcome all to Antara Squad. So आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन में जो हमारे सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो वेबसाइट है, मैं ओपन कर चुकी हूँ. आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक्स. सो गाइज, व्हेनेवर आई एम टेकिंग यू टू ईच ऑफ दीज लिंक्स, जो मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, आई ट्राई टू प्रोवाइड ऑल दीज लिंक्स सो दैट इन केस यू पीपल वांट टू चेक, आप लोग खोल के चेक कर सकते हो. सो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग यहाँ पे ये देखो, मैंने इसका जो वेबसाइट है ओपन करके रखा है, sociology.du.ac.in. सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट. अगर आप लोग नीचे जाएंगे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, बट व्हाट वी आर कंसर्न्ड राइट नाउ इज अबाउट एडमिशन, राइट. सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे. As you can see here, admissions to 2020-21, इसमें हम क्लिक करेंगे and we will wait and see what comes up. So after clicking on this link, this is the page which will come up. Now इनमें से since मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ PG एडमिशन पोर्टल के बारे में बात कर रही हूँ, all you people have to do is to tick on this. That is PG Admission Portal 2020. उसके बाद आपको ये लॉगिन का पिक्चर आ जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. पर ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी. सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, हाउ डू दे कंसिडर दिस एग्ज़ाम. So the first thing that you people have to remember is to go back to the website and यहाँ पे जाने के बाद go to study. आपको स्क्रीन के ऊपर ही स्टडी दिख रहा होगा, उसमें MA प्रोग्राम में आपको टिक करना है. ओके, so the moment you tick on MA program, all the details related to this program will show up, including entrance exam. तो सबसे पहली बात तो इन लोगों ने ये मेंशन की है कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है MA सिलेबस का. So this is something important which I want to open. So the moment you click on MA syllabus, आपको दो चीज़ें दिखाएगी, that is MA in Sociology syllabus, दूसरा है MA Sociology CBCS mode 2019 onwards, which means this is our concern. हम 2019 onwards का जो syllabus है वो हम देखने वाले हैं. उसके अलावा if you go नीचे, आप अगर नीचे जाते रहेंगे तो आपको entrance exam बोल के और एक option दिखेगा. Click on that and you will see this. They have clearly mentioned this and I want to read this to you all. I hope it is visible. The format of the question paper of this year's entrance exam will be similar to previous year's questions. So एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है that 2016 तक जो एग्जाम का पैटर्न था was very different. 16 से पहले हमारे descriptive type questions आया करते थे where you people had to write essay type. अब essay type का ज़माना चला गया है, सारी universities have shifted from essay type to MCQ based exam. However, यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है that for the past 4 years they have been following a very different format. इस पेपर में ये लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं, बट दे विल ऑल्सो टेस्ट योर जनरल नॉलेज, जो भी हमारा आसपास
करंट नॉलेज या रीसेंट डेज जो हमारे इमर्जिंग थियरीज हैं, नए नए चीज़ें जो आई हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। उसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में वीक है या फिर जो भी हमारे एनालिटिकल बेसिक रीजनिंग है, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दे डू आस्क वेरी सिंपल लॉजिकल एनालिसिस लाइक सिलोजिज्म एटसेट्रा। इस तरीके की चीज़ों को आपको थोड़ा देख के जाना है। उसके बाद हम आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। मैनी ऑफ यू नो व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, बट द वंस हु डोंट नो, मैं आपको बता दूं, DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन मीन्स आपको एक सेट ऑफ डेटा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम या फिर इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, अ फॉर्म ऑफ चार्ट। चार्ट, टेबल, पाई चार्ट कुछ भी हो सकता है, उसको पढ़ के आपको आंसर करना है। नाउ दिस रिक्वायर्स अ शिफ्ट हियर, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपको प्योर मैथमेटिकल DI नहीं पूछी जाएंगी, बट समवेयर वेरी क्लोज टू सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। सोशियोलॉजी के टॉपिक्स पे बेस करके ये लोग आपको डेटा देंगे, जिसको पढ़ के आपको एनालाइज करके फिर आपको MCQ टिक करने हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेनी ऑफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू, कि DU का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इज नॉट लाइक अदर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आपको थियरीज पे पूछी जाएंगी, डरखाइम मार्क्स, ये वो, दे वोंट आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट। Most of the questions are research comprehension. I hope all of you know what is research या फिर reading comprehension. यहाँ पे आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, you will have to read the whole para and then read the questions and answer them. So it takes a lot of time, and not just that, आपको बहुत अच्छी वो practice होनी चाहिए जिससे आप आराम से वो पैरा जल्दी से पढ़े, उसके बाद उसी टाइम में आप उसे सोच के फिर आंसर को टिक करें, बिकॉज आंसर्स आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग most of the times. Okay, now they have clearly mentioned that familiarity with the BA sociology syllabus is desirable but not necessary. That means कि जो भी students हमारे BA sociology के background से नहीं आ रहे हैं, this is not a huge drawback, because अगर आप खुद logically सोचे, you are a student of sociology, somebody else might not be, लेकिन आप दोनों एग्जाम हॉल में बैठ के सेम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, विच माइट बी और माइट नॉट बी रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। सो इट इज ओके अगर आपको सोशियोलॉजी के बेसिक्स पता है, बट इट इज ऑल्सो फाइन बिकॉज अल्टीमेटली आपको रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। सो नाउ दे हैव प्रोवाइडेड इन दिस साइट ओनली, आपको बाकी साइट्स में जाके हंटिंग नहीं करना है, इसी साइट में दे हैव गिवन यू 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स ओपन करके रखी है so that you people get an idea कि किस तरीके के हमारे questions आए हैं इससे पहले। So let me read out this question to you all so that you understand. Some American executives visiting Japan have expressed surprise that so many Japanese directors are unable to explain the details of their own enterprise. They rely cheerfully on their beloved and trusted subordinates to run the business. One would have to search widely in Japan to find the company, so common in the West, run by only 1 or 2 men at the top, while the employees act as simple tools. तो यहाँ पे एक basic reading करने के बाद हमें क्या पता चला, that यहाँ पे they are talking about Japanese companies and it's an analysis by the American executives. So now let me give you a tip how to solve reading comprehensions faster. अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे फिर जाके आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो जो आपका प्रोसेस है वो स्लो डाउन कर जाएगा। पहली चीज आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना है इफ यू आर इन अ हरी, अदरवाइज आप वही फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, पैराग्राफ पढ़ के फिर आंसर करना। अगर आप बहुत ही स्लो लर्नर हो, स्लो रीडर हो, आपसे नहीं हो रहा है, टाइम जा रहा है, व्हाट यू डू इज फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन। It follows from this that अभी आप questions options को पढ़ो कि Japanese and American enterprise have very different leadership structures. Japanese directors do not work much. Relations between the employers and employees are very strong in Japanese business. Business enterprises are culturally neutral. तो अभी आपको यहाँ पे आंसर देना है that two codes, यहाँ पे आपको codes दे दिया गया है, that means एक आंसर सही नहीं है, 2 and 3 करेक्ट हो सकता है, या फिर 3 and 4 करेक्ट हो सकता है, 1 and 4 etc. So in this we see the correct option that they have given us is 1 and 4, that is Japanese and American enterprises have very different leadership structures as well as
business enterprises are culturally neutral, जिसका मतलब है कि 2 and 3 are not correct. So this is just one plain example. सारे जो हमारे questions हैं are somewhere or the other. Reasoning के किस तरीके के questions आते हैं हम देख लेते हैं. Some animals are insects, some insects are butterflies, all butterflies are colorful things. These are basic syllogism. आजकल बहुत सारे online आपको sources मिल जाएगी कैसे आपको basic syllogism सीखना है. There are no end to any such this. So अगर आप लोग रीजनिंग में वीक है, do not give up. There is time. 2-4 वीडियोस देखो, एक बार आपको वो ट्रिक मिल जाए, you will easily learn how to do these syllogisms so that in questions में आप पीछे ना रहे. Because otherwise people who are from sociology department will anyway score on the other questions, although it's very difficult because most of them are based on passage. So this is another passage जहाँ पे एक बहुत ही लंबा चौड़ा passage आपको दे दिया गया है and उसके आधार पे you have to answer this. तो वही आपको फॉलो करना है जो मैंने आपसे कहा है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, यू कैन रीड द ऑप्शंस एंड देन गो बैक रीड द पैरा, या फिर अदर वे अराउंड, विच एवर वे यू फाइल कंफर्टेबल विद. नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट इसी तरीके के हमारे 50 क्वेश्चंस रहेंगे. Okay, there will be 50 questions. Now the reason why I have shown you the questions is because many of you ask me कि मैम DU के लिए कौन सा बुक पढ़े. यही चीज मैं आपको बताने वाली थी कि DU के लिए आपको कोई पर्टिकुलर किताब पढ़ के आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज एनीवे आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ऑन द स्पॉट आपको दिमाग लगाना है. सो इट डज नॉट मैटर आपने क्या थियरीज पढ़ी है, कौन से किताबें पढ़ी है एक्सेट्रा, बट एटलीस्ट एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कैसे स्पीड में ये जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर सके. इसी पैटर्न में सारे क्वेश्चंस हमारे मेंशन्ड है अलग अलग सालों की, तो थोड़ा बहुत यू हैव टू बी अवेयर विद दीज हमारे concepts etc. But yes, you don't have to see the older papers much because most of the older papers are shorter MCQs. but अब के जो हमारे recent ये 2 papers हैं, इसमें हमारे जो passages हैं वो काफ़ी बड़े हैं and not really related to our theoretical concern. जबकि पुराने papers में हम देखते थे कि कहीं ना कहीं they are asking questions from Durkheim, Marx, Weber, जो हमारे common terminology में हम सीखते हैं. अदरवाइज ऑल्सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ये जो पुराने 4 साल के पेपर्स इन लोगों ने दिया है उनको एक बार जरूर फर्स्ट टू लास्ट देखें. इफ यू पीपल वांट मी टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस विद यू ऑल, डू लेट मी नो. आई विल ट्राई टू मेक सम टाइम एंड डिस्कस दोज विद यू ऑल. ओके, यस, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, यू कैन सी देम. मैं सारे लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको खोजने में डिफिकल्टी हो रही है. राइट, सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग. There is a PG bulletin information which is like a prospectus which is issued by DU. वहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल्स है नहीं, बस जो हमारा कोर्स नेम MA सोशोलॉजी है उसका जो क्राइटेरिया है एंट्री का वो 2 मेंशन किया है. एक है मेरिट बेस्ड जो कि है कि आप एंट्रेंस में कैसा परफॉर्म करते हैं. दूसरी है क्या कहते हैं, यस sorry, merit based is the ones who are already doing sociology BA ऑनर्स, जो ड्यू से ही करते हैं. अगर वो लोग चाहे तो वो इफ दे हैव स्कोर्ड 55 और मोर% एग्रीगेट ऑन इक्विवेलेंट ग्रेड तो फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज आप एंट्रेंस दे सकते हो जहां पे आप किसी भी सब्जेक्ट के ग्रेजुएट हो, डज नॉट मैटर, साइंस, इंजीनियरिंग, कुछ भी हो सकते हो. एंड उसके अलावा यू नीड 50% और मोर मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड. उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशंस होती है विच आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ. हमारे अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशंस के लिए रिलैक्सेशंस होती है परसेंटेज में. उसके सारे डिटेल्स इसी बुलेटिन के बिगिनिंग पार्ट में है. कौन से एससी के लिए कितना रिजर्वेशन है या फिर कितना हमारा रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए क्या है एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इसी बुलेटिन के फर्स्ट हाफ में है. सो यू कैन गो थ्रू देम एंड अंडरस्टैंड इट. उसके अलावा एज आई टोल्ड यू लास्ट में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू ऑल द लॉग इन, हाउ टू फिल अप. तो पहले ही मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसके लिए कुछ फिक्स्ड हमारे सेंटर्स हैं. हर जगह नहीं होता है ये एग्जाम. देयर आर आई थिंक अराउंड 10 सेंटर्स जहाँ पे एग्जाम होल्ड किया जाएगा. सो प्लीज डेफिनेटली डू हैव अ लुक एट दो सेंटर्स. अगर आपको लगता है कि आप उस सेंटर में जाके एग्जाम नहीं दे सकते हैं, देन दैट इट डज नॉट मेक एनी सेंस. ओके, नाउ please
प्लीज लुक एट दिस थिंग बिकॉज आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। इन लोगों ने एक प्रेस रिलीज दी है कि अल्टीमेट अभी फिलहाल हमारे टेंटेटिव डेट्स क्या है। तो अगर आप लोग देखते हो कि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उनकी जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो शुरू हो चुकी है 28 जून से, एंड राइट नाउ टिल 4th जुलाई यू हैव द टाइम टू फिल अप द फॉर्म्स। इसके बाद एडमिट कार्ड कब निकलेगी, एग्जाम कब होगा, ये कुछ भी इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है। दे हैव केप्ट दैट ऑप्शन टेंटेबल बिकॉज दे आर नॉट श्योर अभी कोरोना वायरस के लिए कब होगा एग्जाम, सेंटर्स कब खुलेगी, वी डोंट नो, बट एटलीस्ट आप लोग फॉर्म फिलअप करके रख सकते हैं। ओके, one more thing that I want to take you through, although it's not very important, but it is that कि इनका हमारा syllabus क्या है masters का। okay, so although it's not very relevant, but let me show you what is their syllabus of MA Sociology from 2019 onwards। कुछ तो हमारे की syllabus है, उनके अलावा क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। They have mentioned everything कि कौन से हमारे subjects पढ़ाई जाती है etc etc। Now yes, please focus on this, I hope it is visible। एक तो हमारे sociological theories हैं जहाँ पे हम classical theories पढ़ते हैं etc। Sociology of kinship, sociology of religion, Indian sociology, academic reading and writing जहाँ पे आपको research papers कैसे लिखने हैं, thesis कैसे लिखने हैं, those things you will be clearing your doubts on। Methods of sociological research, everything about research methodology, economy and society, political sociology, social stratification, and we have research methods again। उसके अलावा you have a lot of electives जहाँ पे आपको choose करने को मिलता है। There are plethora of courses that you can select from। Economic sociology है, industrial sociology है, many such options, so you can go through this later on as well when I attach this link to you all। Now let's come to the final part that talks about the login part। यहाँ पे as usual you people have to keep certain things prepared with you all। कुछ हमारे forms, कुछ pictures, signatures etc। जो सबसे important चीज जो आपको याद रखना है is that आपको एक valid ID proof चाहिए, self attested वाली, जो कि गवर्नमेंट होती है, which are आधार कार्ड, वोटर्स आइडेंटिटी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से। उसके अलावा यू नीड योर क्लास 10th सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी या फिर हमारा डेट ऑफ बर्थ, बट हाउएवर नाउअडेज इन इंडिया फॉर डेट ऑफ बर्थ it is 10th certificate which is considered to be the final paper, and then we have caste certificate। अगर आप उस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हो you need a caste certificate as well। so these are certain important things that you people have to remember other than the picture and signature। picture and signature के बारे में तो I think all of you are clear। Yes, so these are certain things that I wanted to tell you all। however अगर आप लोगों को कोई भी doubt है regarding the academic part of it कि questions क्या है, questions किस तरीके के हैं, so do let me know। and questions are in English just in case you people weren't aware of it। and thank you so much, I hope this video has helped you। I have also made similar videos for JNU, EE, Jamia etc। if you have not checked them out, do check them out, I'll post the link here as well। thank you so much, I'll see you all in the next video।